اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آسمانی کتاب زبور عطا کی تھی۔ زبور میں بنیادی تعلیم توریت میں دی گئی تعلیم کے ہی مطابق تھی۔ اس طرح زبور کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پھر سے لوگوں تک پہنچایا، گویا آپ کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا تکملہ تھی۔ زبور منظوم شکل میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے علاوہ شام، عراق، فلسطین، زرون اور آس پاس کے ممالک پر حکومت بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد میں، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت دی تھی اور ہر بات کا فیصلہ کرنے کو سکھایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہترین مقرر تھے۔ آپ کا خطاب دلوں کو مسحور کر دیتا تھا۔ آپ انتہائی مؤثر، آسان اور سمجھ میں آنے والے انداز میں بیان فرماتے تھے۔ خواہ کوئی کتنا ہی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ اس کا ایسا حل بیان فرما دیتے جو کہ عین عدل و انصاف پر مبنی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے۔ وہ اکثر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی آواز ایسی تھی کہ نہ صرف انسان بلکہ پرند، چرند، جانور اور جنات، یہاں تک کہ پہاڑ جھومنے لگتے تھے اور آپ کے ساتھ تسبیح خوانی کرتے۔ یہ بات قرآن میں 3 جگہ بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو اس داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے پیچھے پڑھیں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑ اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکمت و علم دے رکھا تھا، اور داؤد علیہ السلام کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرند بھی تھے، اور یہ سب ہم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوئی ہوگی کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ گایا کرتے تھے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا کیا ہے، اور ہر ذرہ اللہ کا فرما بردار ہے اور اس کی تعریف و تسبیح کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے۔ 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں سے ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے ساتھ جانور، پرند، جنات، یہاں تک کہ پہاڑ عبادت اور تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے تھے۔ مثلاً کنکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہادت کا اقرار کرتی تھیں، اور اسی طرح جانور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے تھے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک منبر آپ کے لیے بنا دیا گیا جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دینے لگے، تو صحابہ نے دیکھا کہ کھجور کا وہ خشک تنا آپ کی جدائی کی وجہ سے رونے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلاسا دینے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو اس درخت نے رونا بند کر دیا۔ اس درخت کی جگہ ایک ستون بنا دیا گیا ہے جو مسجد نبوی میں موجود ہے، اس پر استوانۂ مخلقہ لکھا ہوا ہے۔
जनाब शेख जलालुद्दीन अल-स्यूती ने खसाइसुल कुबरा में लिखा है कि कंकरियाँ अल्लाह ताला की तस्बीह हर वक्त बयान करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ा के तौर पर सहाबा कराम को दिखाया कि जब कंकरियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली में होती तो सहाबा कराम इन कंकरियों का तस्बीह बयान करते, अपने कानों से सुन सकते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली में वो कंकरियाँ होती तो सहाबा कराम उन कंकरियों का तस्बीह बयान करना अपने कानों से सुनते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम खाना अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाया करते थे और हमने 12 खाने को अल्लाह की तस्बीह करते हुए सुना था। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्का में एक पत्थर था जो मेरे नबी बनने से पहले भी मुझे सलाम किया करता था, मेरे नबी होने के बाद भी उसका यही मामूल था, उसे आज भी मैं जानता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन दरख्त और पत्थर अज़ान देते थे और वो क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन के बुलाने की शहादत देंगे। इस तरह ये बात भी साबित हो गई कि सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि उन पहाड़ों की तस्बीह इंसान अपने कानों से सुनता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हाकिम वक्त होते हुए भी अपनी हुकूमत के ख़जाने से कभी ना अपने लिए ना अपने ख़ानदान के लिए एक पैसा तक न लिया। वो ख़ुद अपने हाथ से काम और सनअतकारी करते और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते थे। वो दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी मेहनत और मज़दूरी को आसान और बाबरकत बना दे ताकि मुझे ज़िंदगी भर हुकूमत के ख़जाने की मोहताजी ना हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने हाथों से कमाई हुई रोज़ी सबसे बेहतर है, जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कमाते थे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खलीफा वक्त के लिए जायज़ है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए इस्लामी बैतुल माल से रकम ले सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर यह है कि उसके अलावा अपने हाथ से कमाने की कोशिश करे, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मौत से पहले हुकूमत से लिए हुए तमाम पैसों को वापस कर दिया था जो उन्होंने वजीफ़ा के तौर पर लिए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उनके लिए रोज़ी कमाना आसान बना दिया था। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने उनके लिए लोहे को नरम बना दिया था। अल्लाह ताला फरमाता है और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था। इसी तरह देखिए सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के ज़रर से तुम्हारा बचाव हो, हमारा लश्कर अदा करने वाले हो। हज़रत सैयद महमूद आलूसी ने इमाम कुर्तबी के हवाले से रूहुल मानी में नकल किया है कि जंग के लिए लोहे की ज़ीरा बनाना सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया था, जो एक फ़ौजी को पहले के बाद वज़नदार मालूम नहीं होता था। ये एक सिपाही बहुत आराम से उस ज़ीरा को पहनकर हरकत कर लिया करता था और मैदान जंग में दौड़ने भागने में उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। आपके अलावा और कोई इस तरह की ज़रा नहीं बना सकता था। ये एक बहुत ही अहम मसला है कि हमें किसी काम करने वाले को कमतर नहीं समझना चाहिए। जो लोग सनअतकारी करते हैं, जाहिल लोग ऐसे लोगों को लोहार या तरखान वगैरह के नाम से पुकारते हैं और उन्हें कमतर या महज मजदूर पेशा समझते हैं, यहाँ तक कि उनमें ब्याह शादी तक नहीं करते। हालांकि सनअतकारी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर बेशुमार एहसानात किए थे। इसी तरह उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी वो दोनों अल्लाह की इन तमाम अताओं की बिना पर मज़ीद शुक्रगुज़ार बंदे बन गए थे। उनके शुक्रिया का ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह सबा आयत नंबर 13 में किया है। जो कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते वो जिन्नात तैयार कर देते, मसलन केले और मुजस्समे और हौज़ों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत दे गए।
اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول ایسا تھا کہ دن رات گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تاکہ اللہ تعالیٰ کا بجا طور پر شکر ادا کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کو بہت پسند کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے پہلے نصف حصے میں سوتے تھے، پھر رات کے ایک تہائی حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، پھر رات کے بقیہ چھٹے حصے میں اپنی باقی نیند پوری کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے روزے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے تھے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناگا کرتے تھے، جو بہت مشکل کام تھا۔ امام ترمذی اور امام ابو بکر نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عطا بن یاسر نے بیان کیا ہے کہ جب سورہ سبا نازل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور مذکورہ آیت پڑھ کر کہا، اگر کسی نے ان 3 چیزوں پر عمل کر لیا تو اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سن کر 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غصہ اور سکون کی حالتوں میں عدل و انصاف کرنا، غربت اور کشادگی میں میانہ روی اختیار کرنا، ظاہر اور پوشیدہ حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا جب کبھی انعام و احسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید شکر گزاری کی یاد دہانی کرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض نقل کرتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام کو یاد دہانی کرائی جاتی تو ابو داؤد علیہ السلام کہتے، یا اللہ، میں جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی آپ کی دی ہوئی توفیق کے باعث ہے، جس میں اور بھی شکر واجب ہوتا ہے۔ یا اللہ، آپ کے شکر کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، اس بات کا اقرار کرنے سے آپ نے واقعی میرے شکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام جیسا اخلاق و کردار عطا فرما تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کو اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے ایسا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना झगड़ा बयान करने लगे। मुद्दई कहने लगा कि उस आदमी की भेड़ियों ने मेरे खेत की सारी फसल तबाह कर दी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस आदमी की फसल की कीमत दूसरे आदमी के मेढ़ियों की कीमत के बराबर है, इसलिए मुद्दई इस आदमी की सारी मेढ़ें ले ले, ये उसकी फसल तबाह होने का मुआवज़ा होगा। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 11 साल के थे और अपने वालिद के करीब ही बैठे हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये फ़ैसला तो ठीक है, मगर मेरा मशवरा ये है कि इस आदमी की मेढ़ियाँ इस दूसरे आदमी को आर्जी तौर पर दी जाएं। ये आदमी उनके दूध और ऊन इस्तेमाल करे, इस दौरान में दूसरा आदमी उसके खेत में काम करे, यहाँ तक कि फसल पहले की तरह हो जाए, फिर उस वक्त खेत के मालिक को दे और मेढ़ियों के मालिक को मेढ़ियाँ वापस दे दी जाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के इस मुदब्बराना फ़ैसले से बहुत खुश हुए। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जब मौत आई तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत और नबूवत दोनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कर दी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुकूमत की और अपनी हुकूमत के चौथे साल बैतुल मुक़द्दस को तामीर करना शुरू किया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत सारे गैर मामूली फ़ज़ाइल से नवाजा, जिसमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह आप भी जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। और अल्लाह ताला ने सूरह नहल में फरमाया, और हमने यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, तारीफ़ उस अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। और दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए और कहने लगे, लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर तरह की चीज़ें अता की गई हैं। बेशक यही है अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल। हवाओं को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने तुंद तेज़ हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया, जो उसके फरमान के मुताबिक इस ज़मीन की तरफ चलती थी जहाँ हमने बरकत दे रखी थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हवाओं को उनके कब्ज़े में दिया था, वो उन्हीं के हुक्म से चलती थी, बड़ी नरमी के साथ वो जहाँ चाहते थे उसको पहुँचा देते थे। हवाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर थीं। 1 महीना का सफ़र सुबह के वक्त या सिर्फ शाम के वक्त तय कर लिया करते थे। यहाँ पर कुरान ने 3 चीज़ें बताई हैं। पहला, नंबर 1, हवाओं पर आपको मुकम्मल इख्तियार था। नंबर 2, बहुत तेज़ हवाएं भी आपके लिए बहुत ही आरामदेह और पुरसुकून रफ्तार से चलती। नंबर 3, आरामदेह रफ्तार के बावजूद हवाओं के ज़रिए वो महीनों का सफ़र 1 दिन में तय कर लिया करते थे। इसी तरह 1 महीने का सफ़र सिर्फ़ 1 शाम में तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अज़ीमुश्शान इमारात और बड़े बड़े किले बनाने का बहुत शौक़ था। अल्लाह ने उनके लिए पिघले हुए तांबे के चश्मे निकाल कर इमारात बनाने का अमल आसान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह सबा में, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल उसकी महीना भर की हुई थी और शाम की मंजिल भी, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। और इसके रब के हुक्म से बाज़ जिन्नात उसकी मातहती में उसके सामने काम करते थे, और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करता, हम उसे भड़कती हुई आग के अज़ाब का मज़ा चखाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की चौथी ख़ुसूसियत ये थी कि अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों, परिंदों और जिन्नों को उनके कब्ज़े में दे रखा था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि उन्हें ऐसी हुकूमत दी जाए
कि उसके बाद ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। अल्लाह ताला ने सूरह साद में आयत नंबर 35 में फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को सज़ावार ना हो, बेशक तू ही अता करने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। जैसा कि ऊपर मैंने बयान किया है, पहले मैंने बयान किया है, जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हर किस्म के काम करते थे। अल्लाह ताला ने सूरह सबा में फरमाया, जो कुछ सुलेमान चाहते वो जिन्नात तैयार कर देते, मसलन किले और मुजस्समे और हौज़ों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगें। ऐ आले दाऊद, उसके शुक्रिया में नेक अमल करो, मेरे बंदों में से बहुत कम लोग शुक्रगुजार होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अहम काम जिन्नों को सुपुर्द किया, वो ये कि वो मस्जिद अक्सा की तामीर करें, जो बहुत अज़ीमुश्शान और वसी व अरीज़ इमारत हो। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मक्का में काबा की तामीर नौ की थी, इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर नौ की थी। एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वो कौन सी मस्जिद उसके बाद तामीर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मस्जिद अक्सा। अबू ज़र ग़फ़ारी ने पूछा, दोनों के दरमियान कितने वक्त का फ़ासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 40 साल का। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की बातचीत सुनी, जिसका ज़िक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा। सूरह नहल में आयत नंबर 19 और 17 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जो जिन्नात, इंसान और परिंद पर मुश्तमिल थे, जमा किए गए। हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी की गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उसकी इस बात से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर हंस दिए और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे, मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ों को बयान किया है कि सोचने की वो एक इंतहाई छोटी मखलूक चींटी की आवाज़ को भी बहुत दूर से सुन और समझ सकते थे। इन मोजज़ात से हमारा ईमान और कवी होता है। यकीनन अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है और वो अपने चुने हुए बंदों पर तरह तरह के इनाम व इकराम करते हैं। चींटियों के इस किस्सा में अल्लाह ताला की कई निशानियां मौजूद हैं। इस अहमियत की वजह से इस सूरत का नाम सूरतुन्नमल रखा गया। अन्नमल के माना चींटी के होते हैं। यहाँ पर यह चीज़ भी काबिल ज़िक्र है कि बाइबल का तर्जमा करने वालों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारे मनगढ़ंत नाज़ेबा और काबिल शर्म वाक़यात नकल किए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम तर्जुमा करने वालों को कुरान की तालीमात सीखने, समझने और मानने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मलका सबा का वाक़या बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यमन के किसी भी बादशाह को सबा कहा जाता था। उन्होंने तकरीबन 1000 साल वहाँ हुकूमत की थी। मलका सबा उन्हीं में से एक थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 950 साल पहले
सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। सबा का पूरा नाम कुरान ने नहीं बताया, ना ही ये बताया कि वो यमन के किसी हिस्से में हुकूमत करती थी। हाँ, यहूदियों के यहाँ सबा का नाम बिल्किस बताया जाता है। कुरान ने सबा की कहानी का छोटा सा हिस्सा बयान किया है, जो कि इंसान के लिए निहायत आमोज़ सबक आमोज़ वाक़या है। इंसानी फ़ौजें, जानवर, परिंदे, जिन्नात वग़ैरह हर रोज़ आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िरी दिया करते थे और आपकी खिदमत बजा लाते। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक की हाज़िरी ले रहे थे। उस वक्त हुदहुद को गैर हाज़िर पाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह ना बताई तो उसे बड़े सज़ा दूंगा या कत्ल कर दूंगा। इसी दौरान हुदहुद दरबार में आ पहुंचा और बड़ी इंकिसारी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं एक अहम मालूमात आपके लिए लाया हूं जिसको आप नहीं जानते। हुदहुद ने मज़ीद कहा, यमन में एक मलिका रहती है जो बहुत अमीर है, जिसका तख्त बहुत ही अजीम और अनोखा है। शैतान ने उसको और उसकी रियाया को गुमराह कर रखा है। वो लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारी बात कितनी सही और कितनी गलत है। ये ख़त लो और उस तक ले जाओ, देखो वो क्या कहती है। मलके सबा ख़त मिलते ही पढ़ने लगी, फिर अपने दरबारियों से कहा, देखो ये ख़त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है। उसमें लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करना और सरकशी ना करना, बल्कि अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मेरे पास आ जाओ। मलिका ने अपने वज़ीरों से कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। मुझे बताओ कि इस ख़त का क्या जवाब दूँ। उसके मुशीरों ने कहा, आप फ़िक्र ना करें, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। आप जो भी हुक्म देंगे हम हाजिर हैं। मलके सबा ने मुशीरों से कहा, ये बात सच है कि हमारे पास बहुत ताकत है, फिर भी हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कुछ करने के बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए। पहले तो हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। हम कुछ कीमती तोहफ़े हमारे एलचियों के ज़रिए भेज कर देखते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं। इस तरह हम उनकी ताकत के साथ साथ उनके जहन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अगर उनसे जंग शुरू करने के बाद मालूम हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमसे ज़्यादा ताकत वाले हैं तो उनसे लड़ाई मोल लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि फ़ातिह जब किसी शहर में घुसते हैं तो उसको बर्बाद कर देते हैं और वहाँ की रियाया को बेइज्जत करते हैं। इसलिए किसी तकलीफ़ में फंसने से हमें बचना चाहिए। जब मलिका सबा के एलचियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफ़े दिए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम और तुम्हारी मलका ने मेरे ख़त का मतलब समझा ही नहीं। मुझे ये कीमती तोहफ़े नहीं चाहिए, उन्हें वापस ले जाओ। अल्लाह ने मुझे इससे कहीं अजीम नेमतें दे रखी हैं। जाओ अपनी मलका से मेरी इताअत की बात कहो, जल्दी करो। अगर वो ऐसा ना करेगी तो मैं अपनी फ़ौज लेकर आता हूँ। जान लो तुम मेरी फ़ौज का कभी मुकाबला ना कर सकोगे। हम तुम सबको तुम्हारे मुल्क से निकाल कर बेइज्जत कर देंगे। मलके सबा के आदमियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये धमकी भरा पैगाम उसको पहुंचा दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत भी बता दी। ये भी बता दिया कि इंसानों के अलावा जानवरों, परिंदों, जिन्नों वग़ैरह पर भी हुकूमत करते हैं। मलके सबा समझ गई अब तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। उसने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने आप को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने निकल पड़ी। अल्लाह ताला ने उसकी आमद की ख़बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मलके सबा का तख्त लाया जाए और उसके सामने पेश किया जाए।
है। ये काम कौन करेगा? एक बहुत ताकतवर जिन ने कहा, आपके यहाँ से उठने से पहले पहले मैं उसका तख्त उठाकर यहाँ ला सकता हूँ। दूसरा जिन जिसके पास किताब का इल्म था कहने लगा, मैं आपकी आँखों के पलक झपका कर खोलने से पहले पहले ये काम कर सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दूसरे लम्हे मुड़कर देखते हैं कि सबा का तख्त मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन पर अल्लाह के कितने एहसानात हैं। अल्लाह के पैगंबर ऐसे मौजज़ों पर कभी फ़ख्र नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह की कुदरत के आगे अपनी बेकसी और कमतरी का एतराफ़ करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसके तख्त में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम सबा की ज़हानत देखना चाहते थे। क्या सबा अपने तख्त को पहचान सकती है या नहीं? सबा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तुम्हारा तख्त है? उसने उसको बगौर देखा, फिर कहा, ये लगता तो वैसा ही है। फिर मज़ीद कहने लगी, मैं आपकी ताकत व सतूत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। बहरहाल मेरा तख्त इतनी जल्दी यहाँ तक उठवा कर ले आना, यह आपकी मज़ीद बरतरी की अलामत है। मैं अपनी बादशाहत के साथ अपने आप को आपकी इताअत में देती हूँ। उसका ये कहना इस बात का साफ एतराफ़ था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम उसने कबूल कर लिया है। इस तरह सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरतरी मान ली, लेकिन उसे अल्लाह ताला की बरतरी का एहसास न हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को एक दूसरे इम्तिहान में डाल दिया, क्योंकि वो मलका सबा को अल्लाह ताला की कुदरत और बरतरी दिखाना चाहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को एक अजीम शान महल बनाने को कहा। उसका फ़र्श शफ़ाफ कांच का बनाया गया, करीब ही पानी का एक चश्मा बना दिया गया। महल कुछ इस तरह का बना था कि उसके फर्श में चश्मे का अक्स बन रहा था और यूँ मालूम होता था कि पूरे फर्श पर पानी बह रहा है। सबा को इस महल की तफरीह के लिए ले जाया गया। जैसे ही वो उसमें दाखिल हुई, उसने अपने लिबास को पिंडलियों से उठा लिया ताकि भीग ना जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो हकीकत में पानी नहीं, ये तो सिर्फ अक्स है। सबा समझ गई कि ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी बड़ी ताकत अल्लाह के बाइस दी गई है। इतना सोच कर कह पड़ी कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इस पूरी कायनात के रब पर ईमान लाती हूँ और मुसलमान हो गई, यानी अल्लाह ताला की बरतरी का एतराफ़ कर लिया। यही बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त में लिखी थी। उसने अपनी सल्तनत को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में दे दिया। कई उलमा का कहना है कि मलका सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी भी कर ली थी, ताहम कुरान और हदीस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह ताला ने मलका सबा की कहानी इंतहाई मुख्तसर और दिलनशीन अंदाज में सूरह नहल 20 आयत से लेकर 44 तक में बयान की है, जिसका तर्जमा ये है, आपने परिंदों का जायज़ा लिया और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता हूँ। वाकई वो गैर हाजिर है, यकीनन मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरीह दलील बयान करे। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि हुदहुद ने आकर कहा, मैं एक ऐसी चीज़ की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लेकर आया हूँ। मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ी अज़मत वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखलाकर सही राह से रोक दिया है, बस वो हिदायत पर नहीं आते। क्यों नहीं उस अल्लाह को सजदा करते
जो आसमान और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अज़मत वाले अर्श का मालिक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे। फिर उनके पास से हटा और देख कर वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगे, ए सरदार, मेरी तरफ एक बावक़ात रख ख़त डाला गया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने शरकसी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदार, तुम इस मामला में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का कतई फ़ैसला तुम्हारी मौजूदगी और राय के बगैर नहीं किया करती। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और क़ुव्वत वाले, सख्त लड़ने और भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। बस जब कासिद हज़रत सुलेमान के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत ज़्यादा बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबला पर वो लश्कर लाएंगे जिसका मुकाबला करने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें ज़लील व पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर कर देंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अहले दरबार, तुम में से कोई है जो उसके मुसलमान होकर पहुँचने से पहले उसका तख्त मुझे ला दे। ये कवि हैकल जिन्न कहने लगा, उससे पहले आप अपनी जगह से उठें, मैं वो तख्त आपके पास हाजिर कर दूँगा। यकीन मानने के बाद मैं उस पर कादिर हूँ और हूँ भी। ईमानदार जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो पुकार उठे, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री करता हूं। शुक्रगुजार अपने ही नफ़ा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार और बुज़ुर्ग और गनी और करीम है। हुक्म दिया कि उसके तख्त में कुछ फेर बदल कर उसे नाकाबिल शनाख्त बना दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाती। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा, दरियाफ्त किया गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे, और उसे इन माबूदों ने मुसलमान होने से रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा पर परस्तिश कर रही थी। यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। उससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझकर कि ये हौज़ है, उसने अपनी पिटलियाँ खोल दी। फरमाया, ये एक महल है, उसमें जुड़े हुए शीशे हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फर्मा बरदार बनती हूँ। उलमा इस बात को कबूल करते हैं कि सबा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ख़त लिखा था ये तारीख़ में एक इनफरादी हैसियत रखता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखी थी, साथ ही अपना मुख्तसर तारुफ भी दिया था। आपने ये धमकी भी लिखी थी कि मुझसे टकराने की कोशिश ना करना, बल्कि शिकस्त तस्लीम करते हुए मेरी अतात कबूल कर लेना। ख़त का आखिरी फ़करा नहायत फसीह व बलीग है, जिसमें सबा को ये हिदायत की गई थी कि तुम मेरे सामने शरकशी ना करना और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाना। और मेरे दरबार इंसानी तारीख़ में आज तक किसी ने इतना मुख्तसर और फसीह व बलीग ख़त नहीं लिखा। ये ख़त
درخت خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے طاقت و قوت، عقل و دانش، عجز و انکساری عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک اہم واقعہ ہے جو سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ واقعہ اور اس کا پس منظر حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں ملتا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زمین میں اس وقت سب سے زیادہ بڑا عالم با علم شخص کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی بات پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک آدمی ہے جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہے، میرا وہ بندہ آپ کو اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شوق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے کچھ علم سیکھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس بندے سے ملنے کے لیے مزید معلومات دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک توشہ دان میں مچھلی رکھ لو اور دونوں سمندروں کے لیے کے ملنے کی جگہ کی طرف چل پڑو، جہاں تمہاری رکھی ہوئی مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں رک جانا، آپ سے زیادہ عالم و فاضل شخص آپ کو وہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کے ہمراہ سفر شروع کر دیا جس کا نام یوشع بن نون تھا۔ جب وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے، دونوں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ مچھلی توشہ دان سے باہر نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی۔ جس راستے سے مچھلی گئی وہاں ایک سرنگ کی طرح راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام نے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا کہ کس طرح مچھلی نکل کر بھاگی تھی۔ دونوں پھر دوبارہ چلنے لگے۔ ایک دن اور رات پھر چلتے رہے۔ تھکان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی سے کہا مچھلی لاؤ، کھانا کھائیں گے، کیونکہ دونوں بھوک سے بے تاب تھے۔ ساتھی نے کہا میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا تھا کہ مچھلی توشہ دان سے اس وقت نکل کر بھاگ گئی تھی جب ہم چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جگہ تو ہماری منزل تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ پس وہ وہاں سے لوٹ پڑے اور واپس اس چٹان تک آئے۔ وہیں ان کو حضرت خضر علیہ السلام دکھائی دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم موسیٰ ہو؟ بنی اسرائیل آپ کی قوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ علم حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس حدیث میں دونوں کا پورا مکالمہ موجود ہے۔ یہی واقعہ سورۃ کہف 62 آیت نمبر سے 82 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا لا ہمارا کھانا دے، یقیناً ہمیں اس سفر میں سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ تو اس غلام نے جواب دیا آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ جب کہ ہم چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس
की ख़ास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास इल्म सिखा रखा था। उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ताकि जो दानिशमंदी आपको सिखाई गई है आप मुझे भी उसकी तालीम दें। उसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज़ की आपको खबर ना हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूँगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज़ की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तज़किरा ना करूं। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए तो उसने कश्ती में सुराख कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपने उसमें सुराख किया है ताकि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तो पहले ही तुझसे कह रहा था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में न डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, उसने उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आपने एक मासूम जान को बग़ैर किसी जान के एवज़ मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ मेरे हमराह रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आपको मेरी तरफ़ से उज़्र मिल गया है। फिर दोनों चले, एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी, उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की हकीकत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था और उस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी शरकसी और कुफ्र से आजिज़ व परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकीज़गी वाला और उससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा इनायत फरमाए। दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका ख़जाना इस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था जो तेरे रब ने चाहा कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये ख़जाना निकाल लें। ये तेरे रब की तरफ से मेहरबानी थी, मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये है असल राह इन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इस वाक़या से ये सबक मिलता है, अपने आप पर फ़ख्र करना गलत है, ख्वाह कैसी भी खूबी क्यों ना हो। अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों पर कभी नाराज़ नहीं होता और उनकी गलतियों को माफ़ कर देता है, बल्कि उनकी तरबियत के लिए मुनासिब हालात पैदा कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेपनाह इल्म होने के बावजूद भी इल्म के हुसूल के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का बहुत शौक़ था। बस मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश में लगे रहना ये नबियों की सुन्नत है। इल्म के हुसूल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और सब्र की ज़रूरत होती है। यहाँ ये ज़रूर है कि मेहनत, सब्र और इम्तिहान की शक्ल बदलती रहती है। मसलन
इस वाक़या में एक शख्स की ज़रा सी भूल से दोनों को एक दिन और रात का और सफ़र करना पड़ा। तालिब इल्म को अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने बड़े पैगंबर होने के बावजूद अपने राहबर का एहतराम करने और उनके सामने आजिज़ी व इनकिसारी दिखाने में आर महसूस ना की थी। अल्लाह ताला हर नबी को उसके काम के मुताबिक इल्म अता करता है। यही मामला अपने बरगुज़ीदा बंदों के साथ करता है। अल्लाह का इल्म लामहदूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती में थे तो एक छोटा सा परिंदा आया और कश्ती के किनारे बैठ गया और अपनी चोंच में एक बूंद पानी लिया। ये देखकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हम दोनों का इल्म अगर एक साथ मिला दिया जाए तो अल्लाह के इल्म के सामने बस इतनी ही हैसियत होगी जितना इस बूंद की समंदर के सामने हैसियत है। यानी अल्लाह का इल्म समंदर है, हम दोनों का इल्म मिलाकर एक बूंद के बराबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र से हमें सफ़र के बारे में कई दीगर हिदायत मिलती हैं। उन्होंने अपने ग़ुलाम को सफ़र शुरू करने से पहले सफ़र की सिमत और मंजिल बता दी थी। बस हमें भी अपने मुलाजिम को इस तरह की मालूमात दे देना चाहिए। ये हमारे लिए एक याद दहानी है, क्योंकि कई सरदार इस बात को अपने लिए बाइस आर समझते हैं कि अपने मुलाजिम को अपने सफ़र की मालूमात दें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो ये खारिक आदत चीज़ें खुद नहीं करते, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने इस तरह का इल्म दिया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया गया था। यहाँ ये बात साबित हुई कि हर किस्म का इल्म अल्लाह ताला की नेमत और इनाम है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अपने इल्म में का कुछ हिस्सा दे देते हैं। सिर्फ़ अल्लाह ताला गैब को जानता है, जबकि हमारी समझ इंतहाई महदूद है। हम अल्लाह ताला का इस रहनुमाई पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी सारी मुफीद चीज़ें हमें बताईं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम की इब्तिदा और इख्तिताम। कुरान करीम की पहली सूरत में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ से शुरू करते हैं और हकीकत यही है कि हर काम अल्लाह की तारीफ़ से ही शुरू होना चाहिए। इस सूरत में हम अल्लाह ताला से दो चीज़ें मांगते हैं, हर काम में अल्लाह की मदद, सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत और तौफ़ीक़। ये दोनों चीज़ें दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन दोनों चीज़ों को पाने की जब बंदा कोशिश करता है तो शैतान उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। शैतान इसके लिए दो तरीक़े अपनाता है, नेक बंदों के ख़िलाफ़ मंसूबा बंदी करता है और चालें चलता है। दोनों में बुराई के वसवसे डालता है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान की मंसूबा बंदी के मज़ीद तफसील ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया, उस शैतान ने कहा, तेरी इज़्ज़त की कसम है मैं इन सब को बहका कर रहूँगा सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने अपने लिए ख़ास कर लिया है। अल्लाह ताला ने हमें शैतान से लड़ने के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ें दी हैं, बल्कि ये भी बताया है कि उसके चेलों से हम कैसे मुकाबला करें। यह हमें कुरान की दो आखिरी सूरतों में मिलेगा। हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन दो सूरतों में लोगों के लिए बहुत फ़ायदे हैं। इन दोनों सूरतें जादू का असर ज़ायल करती हैं और बहुत सारी बदन और रूहानी बीमारियों को ठीक करती हैं। जादू ऐसी तकलीफ़ और मुसीबत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे मुताश्शिर हुए थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक मुशरिक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था।
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। उस बीमार की कैफियत ये थी कि आप सोचते कि कोई काम कर चुके हैं, हालांकि ना कर चुके होते, यहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा भूलने की शिकायत हो गई। एक रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा कि अल्लाह ने मुझे बीमारी की कैफियत बता दी है। एक दिन मैं ख्वाब देख रहा था, आदमी की शक्ल में दो फरिश्ते मेरे पास आए, एक मेरे सर के पास बैठ गया और दूसरा मेरे पाँव के पास। सर के करीब वाले ने दूसरे से पूछा कि ए मोहम्मद, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी बीमारी है। दूसरे ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर है। पहले ने पूछा किसने जादू किया है। जवाब मिला लबैद बिन आसिम ने किया है, जो मुशरिक था और यहूदियों का दोस्त था। पहले ने फिर पूछा कि जादू उसने किस तरह किया। जवाब मिला कंघी के दंदानों के ज़रिया। पहले ने फिर पूछा कि कंघी कहाँ है। जवाब मिला कंघी किसी चीज़ में लिपटी हुई है और एक कुएं में किसी पत्थर के नीचे दबी हुई है। इस कुएं का नाम ज़रवान है। इब्न कसीर ने इब्न इमाम सालबी से नकल किया है कि उस कंघी में धागा था जिसमें 11 गांठें थीं। अल्लाह ताला ने मुअव्वज़तैन में इसीलिए 11 आयतें नाजिल की हैं। आपने एक आयत पढ़कर एक गांठ खोली, इस तरह दोनों सूरतों को पढ़ लिया और तमाम गांठें खोलती गईं।